فکر نہیں کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میری آصف سے بات کراؤ. مجھے یقین ہے ان کی کال آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آریان اور شاویر مصروف ہوں گے اس لیے فون نہیں اٹھا رہے. مجھے ان سے بات دوبارہ کال کرو انہیں. جی. صاحب کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ کچھ دن چلنے پھرنے میں دشواری ہوگی، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. نہیں بالکل کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. گولی پاؤں کو چھو کے نکل گئی ہے، زخم گہرا ہے لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں لیکن کیا ہم انہیں گھر لے جا سکتے؟ جی انہیں گھر لے جا سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کے دیتا ہوں. اب وہ ٹھیک ہے. شکر ابو کو زیادہ چوٹ نہیں لگی. لیکن بھائی انہیں گھر لے چلتے ہیں. انہیں گھر لے جائیں گے ہم، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ عمر نہیں ہے ان کی، آرام کرنے کی عمر ہے. ہمیں ان کی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، لیکن آپ تو جانتے ہیں انہیں مصروف رہنے کی عادت ہے. وہ اس طرح گھر میں نہیں رہ سکتے. کاش ہم نے یہ دکان نہ بیچی ہوتی. آج ہم سب ساتھ کام کر رہے ہوتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ہوا کیا؟ ایک دم سے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے اب میں بہتر ہوں. گولی لگی نہیں، بس چھو کر نکل گئی. امی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. لگ بھی تو سکتی تھی. آصف آپ اپنا خیال کیوں نہیں کرتے؟ ابو میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں. مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ. نہیں بیٹا. آپ کیا ہوا؟ سویلنگ تو نہیں ہوئی؟ ایکس رے کرایا ہے؟ فریکچر تو نہیں ہے کہیں؟ تو زندہ سلامت گھر آ گیا. او نہیں. میں تو سمجھی لاش آئے گی. مگر ہو گئی ہے. چپ رہے. ہائے آصف صاحب، میں نے اور مانور نے نا آپ کے لیے اتنی دعائیں کی تاکہ آپ خیریت سے گھر آ جائیں. آریان میری بچی کی تو دیکھیں آنکھیں سوج گئی ہیں رو رو کے. کب تک ٹھیک ہوں گی؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ امی بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ 15 دن ہیں، وہ اس کے بعد ابو بالکل ٹھیک ہیں، فکر کی بات نہیں. ارے تم لوگ بلا وجہ پریشان. میں پہلے سے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تم چاہتی ہو میں مزید اچھا محسوس کروں؟ ایک کپ چائے کی پیاری پلا دو. چائے تو میں پلا دیتی ہوں. کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں کھانا ابھی دل نہیں کرا، چائے پلا دو پلیز. کھانا کھائے بغیر دوا کیسے کھائیں گے؟ ارے چائے تو پلاؤ، کھانا بھی کھا لوں گا. لاتے ضد من مانی آتی ہے انہیں. ابو باقی میڈیسنز تو میں نے آپ کو دے دی ہیں، بس وہ ایک پین کلر ہے، وہ سونے سے پہلے لینی ہے. ہاں مجھے پتا ہے الحمدللہ، بس وہ لے لوں گا تو. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ سارے رات کو اس وقت یہاں؟ لو بھائی، انہیں پتا ہی نہیں کہ ان کے ابا کو گولی لگ گئی. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کسی نے؟ بیٹا کیسے بتا دیتے؟ تم تو سو رہے تھے نا. ابو آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا، اللہ کا شکر ہے. گولی چھو کر گزر گئی. پھر بھی بتانا تو چاہیے تھا نا. دیکھو بیٹا، مارنے والے سے بچانے والی ذات بڑی ہوتی ہے. یہ کیا کم ہے کہ میں صحیح سلامت تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. رات بہت ہو گئی، تم لوگ جا کے آرام کرو. کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں. میں بھی ابھی آرام کرنے جاؤں گا.
ابو آئے ہیں، چلے میں آپ کو کمرے تک لے جاتا ہوں. تمہاری ماں چائے بنانے گئی ہے، میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا. اور تم بھی جاؤ بیٹا. آریان جاؤ جاؤ. شاباش جاؤ. شاہویر کی آواز بھرا ہوئی تھی. وہ تقریباً ہاتھ جوڑ کر ایمان کے سامنے کھڑا تھا. ایمان نے سر اٹھایا. آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ مضبوط. شاہویر، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی. تم نے وہ سب کچھ کیا جو ایک شوہر کو نہیں کرنا چاہیے. تم اپنے ساتھ اپنی دوسری بیوی کو لے آئے اور اب مجھ سے امید کرتے ہو کہ میں چپ رہوں، بس سب سہتی رہوں. نہیں، اس گھر میں اب میرا رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. شاہویر 2 قدم آگے بڑھا، آواز میں بے بسی. ایمان، خدا کے واسطے میں غلط تھا، میں مانتا ہوں، مگر تم مت جاؤ. یہ گھر تمہارے بغیر ٹوٹ جائے گا، میں ٹوٹ جاؤں گا. ایمان نے سرد لہجے میں کہا. جب تم گھر میں دوسری عورت لائے تھے تب تمہیں یہ خیال کیوں نہ آیا؟ اس دن میرا دل ٹوٹا تھا شاہویر، آج صرف راستہ بدل رہا ہوں. شاہویر کے ہاتھ لرز گئے. وہ سچ میں ڈر گیا تھا کہ ایمان اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر اس بار ایمان کا فیصلہ واضح تھا. وڈک کی دوسری طرف المیر کے گھر میں بھی تماشا کم نہ تھا. اس کی بیوی جو ہر وقت پیسوں اور آسائشوں کی ڈیمانڈ کرتی تھی آج پھر برس پڑی. المیر، تم آئے روز اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے ہو. میرے باپ نے تمہیں بوٹیک اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اسے بند کر کے بیٹھ جاؤ. مجھے پیسہ چاہیے، اور پیسہ تم تبھی لا سکتے ہو جب بوٹیک کھلا ہوگا، چاہے تمہارے گھر میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو. مگر مجھے تو ضرورت پوری چاہیے. المیر تھکا ہوا بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر. کم سے کم اتنا تو سمجھو، میرے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے. نگہت رو رہی ہے، امی بیمار ہیں. بیوی نے فوراً بات کاٹ دی. مجھے کسی کی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے میرے حقوق چاہیں، میرا لائف سٹائل چاہیے. اور اگر تم نہیں دے سکتے تو پھر صاف کہہ دو کہ اتنی سی بھی ذمہ داری تم سے نہیں اٹھتی. المیر خاموش ہو گیا. اس کے دل میں ایک عجیب سا گھٹن بھرتی جا رہی تھی. ایمان، شاہویر، المیر تینوں گھروں میں رشتے جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے. شاہویر فرش پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا ہوا تھا. اس کی دوسری بیوی کمرے میں کھڑی یہ تماشا دیکھ کر خاموش مسکرا رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ ایمان اب واپس نہیں آئے گی. شاہویر کے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر ایمان چلی گئی تو نہ صرف گھر کی عزت بلکہ اس کا پورا خاندان ایک طوفان میں آ جائے گا. مگر ایمان کے دل پر جو زخم لگ چکے تھے وہ اب بھرنے والے نہیں تھے. ایمان نے سر جھکا کر چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمے مگر کانٹے چبھوتے لہجے میں بولی. شاہویر، میں نے تمہیں برداشت کیا، تمہاری غلطیاں برداشت کیں، تمہاری تلخیاں بھی سہ لیں، مگر جو تم نے اس گھر کے بیچوں بیچ میرے دل کی بے حرمتی کی ہے نا، اس کا جواز کوئی معافی، کوئی آنسو نہیں دے سکتا. تمہاری دوسری بیوی کا یہاں ہونا میری موجودگی کی توہین ہے، اور عورت اپنی توہین پر کبھی خاموش نہیں بیٹھی رہتی. شاہویر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے. آواز رند گئی. ایمان پلیز، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، مگر میں بدلہ لینے نہیں بیٹھا. میں خود کو درست کرنا چاہتا ہوں. میں اسے گھر سے نکال دوں گا. تم کہو گی تو ابھی نکال دوں گا، بس تم یہ گھر مت چھوڑو. ایمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا. نکال دو گے؟ جب لائے تھے تب بھی پوچھا تھا مجھ سے. نہیں نہ، تو اب فیصلہ بھی میرا ہوگا. میں تمہاری سزاؤں سے تھک گئی ہوں شاہویر. دوسری بیوی نے آگے بڑھ کر نرم لہجے میں کہا. ایمان باجی. شاہویر ایمان کے پیچھے بھاگتا ہوا صحن تک آیا، مگر ایمان نے ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا. اس کی چادر ہوا میں ہل رہی تھی اور قدموں میں ایک مضبوطی تھی، جیسے وہ برسوں کے بعد پہلی بار اپنے لیے کوئی فیصلہ کر رہی ہو. شاہویر نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ایمان نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا. میرے راستے میں مت آؤ شاہویر. ایمان کی آواز میں وہ سختی تھی جو کبھی شاہویر نے اس میں محسوس نہیں کی تھی. ایمان، خدا کے لیے ایک موقع دے دو، آخری موقع. شاہویر کی آنکھیں سرخ تھیں، سینس پھولا ہوا تھا، جیسے وہ زندگی کی آخری امید پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو. ایمان نے آہستہ سے رخ پھیر کر اسے دیکھا، لیکن نگاہوں میں نہ محبت تھی نہ نرمی، صرف ٹھنڈا فیصلہ. اگر میں آج اس گھر میں رہ گئی نا تو یہ میری کمزوری ہوگی، میرا جرم. تم نے مجھے دوسری عورت کے سامنے رسوا کیا ہے. ایک عورت چاہے جتنی بھی صابر ہو، وہ اپنی بے حرمتی کبھی نہیں بھولتی. شاہویر کے پیروں تلے جیسے زمین کھسک گئی. اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لے لیا. دوسری بیوی دروازے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی.
मगर अब उसके चेहरे पर भी खौफ आ चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि ईमान का जाना सिर्फ घर तोड़ेगा नहीं, बल्कि शाहवेर की जिंदगी को भी अजीर्ण बना देगा। ईमान जैसे फैसला सुनाने के बाद रखने को तैयार न थी। वो सीधी अपने कमरे की तरफ गई, कपड़े समेटे, अपना बैग उठाया और आहिस्ता लेकिन मजबूत कदमों से घर से बाहर निकल गई। शाहवेर आखिरी लम्हे में दहाई देने लगा। ईमान प्लीज मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें वादा करता हूँ। ईमान ने गहरी सांस ली, बगैर पीछे देखे कहा, वादे वो करते हैं जो पहले निभा चुके हूँ, तुमने तो रिश्ते ही तोड़ दिए। शाहवेर अब मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं कह रही, मगर जब तक मैं खुद को दोबारा इंसान समझने लगूं तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। दरवाजा बंद होने की आवाज शाहवेर के दिल पर आखिरी चोट थी। वो वहीं बैठ गया, दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। दूसरी बीवी ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर शाहवेर ने उसे भी झटक दिया। वड़िक की दूसरी तरफ अलमीर के घर में आग मजीद भड़क चुकी थी। बीवी कम से कम ये नहीं चाहती थी कि बात इतनी बिगड़ जाए, मगर उसे अपनी जबान की तेजी का अंदाजा था। वो गुस्से में अलमीर के जज्बात, उसकी हालत सब नजरअंदाज कर देती थी। अलमीर मोबाइल पर भाइयों के कॉल्स आते देख रहा था। हमीद की हालत खराब थी, नगहत रो रो कर बेहोश हो रही थी। माँ बार बार अलमीर को बुला रही थी कि आकर घर के हालात संभाले, मगर बीवी सामने खड़ी दीवार की तरह कह रही थी, तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी के पास। हामिद भाई टूट गए हैं, उन पर बड़ा जुल्म हुआ है। बीवी ने तलखी से जवाब दिया, मुझे तो लगता है हामिद भाइयों के घर में कोई ना कोई मसला रोज पैदा ही रहता है, कभी पैसे, कभी बीमारी, कभी झगड़े, और तुम बस उनके पीछे अंधाधुंध भागते रहते हो। अलमीर को यह जुमला चीर कर रख गया। वो मेरे भाई हैं, खून है मेरा। बीवी ने तंजिया हंसी हंसी, कौन हो या कुछ और, मेरे लिए पैसा और मेरा मुस्तकबल ज्यादा जरूरी है। तुम आज भी गए ना तो याद रखना बहुत एक कल नहीं खुलेगा, और मैं भी शायद न रहूं। ये धमकी अलमीर के दिल पर आखिरी वार थी। वो दरवाजे के पास खड़ा कनपते हुए हाथों से चाबी पकड़ रहा था। एक तरफ माँ, बहन, भाई, दूसरी तरफ बीवी के तकाजे, धमकियां, उसकी खुद गर्जी का बोझ। ईमान घर से निकल चुकी थी, मगर उसके कदमों में लर्जिश थी। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से लग रही थी, मगर दिल के अंदर एक क़यामत टूटी हुई थी। वो चल तो रही थी, मगर हर कदम जैसे बरसों की थिकन अपने अंदर समेटे हुए था। घर की दहलीज पार करते ही उसने खुद को रोक लिया। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फौरन पलकें झपक कर उन्हें रोक लिया। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अब कमजोर नहीं पड़ूंगी। घर के अंदर शाहवीर दीवार के साथ टेक लगाए फर्श पर बैठा था। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, बाल बिखरे हुए, और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। दूसरी बीवी, जिसकी ना अभी तक बरकरार थी, आहिस्ता आहिस्ता शाहवीर के करीब आई, मगर उसने हाथ के इशारे से उसे पीछे हटने का कहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शाहवीर का लहजा निहायत जहरीला हो चुका था। वो घबरा गई। मैंने क्या किया? मैंने तो कभी। खामोश। उसकी गरजदार आवाज ने सारा घर लर्जा दिया। तुमने उस घर में कदम रखा ही गलत वक्त पर था, मगर मैं ही था जो बहका, जो गलत हुआ, जो ईमान की कदर ना कर सका। तुम कुछ नहीं बोलोगी, एक लफ्ज भी नहीं। दूसरी बीवी की आंखों में खौफ तैर गया। शाहवीर ने हाथ से पेशानी मसली, बलों में अंगलियां फेरते हुए रूहान सा लहजा अख्तियार कर लिया। ईमान चली गई है और अब सब खत्म है। ईमान दूसरी तरफ वो टैक्सी में बिल्ड गई। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मोबाइल मुसलसल भेज रहा था शाहवीर की कॉल्स, सास के पैगामात और दूसरी बीवी की धमकियों से भरे मैसेजेस। ईमान ने बगैर देखे मोबाइल ऑफ कर दिया। अब मुझे भी अपने लिए लड़ना होगा। टैक्सी शहर के रश में आगे बढ़ रही थी। ईमान की नजरें खिड़की से बाहर थीं, मगर जहन में एक ही बात थी, उसका घर, उसका रिश्ता, इसकी इज्जत, सब एक गलत फैसले की वजह से जलकर राख बन चुके थे। अलमीर के घर में उसी वक्त अलमीर बोतिक खोलने की तैयारी कर रहा था। हाथ लर्ज रहे थे। कपड़े प्रेस करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं? अचानक उसकी माँ की कॉल आई, आवाज में कपकपाहट। बेटा, हमीद की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो बार बार जमीन पर हाथ मारकर रो रहा है कि उसने नगहत के पैसे लौटा दिए। बेटा जल्दी आ जा। अलमीर का दिल जैसे सीने में फट गया हो। उम्मी, मैं आता हूँ अभी। बीवी फौरन बाहर निकली, गुस्से में भरी हुई। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना, बोतक खोलो अभी। अलमीर ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाले।
चेहरा सख्त था, आवाज बोझल मगर मजबूत। मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा खून है, मैं जा रहा हूँ। बुटीक बाद में भी खुल जाएगा, मगर अगर मैं आज उनके पास न गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। बीवी ने चीख कर कहा, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अगर दरवाजे से बाहर गए ना तो मैं वापस तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। अलमीर ने आहिस्ता से चाबी उठाई, दरवाजा खोला और पूरी खामोशी के साथ जमला कहा, शायद फिर न आना ही बेहतर हो, क्योंकि आज मैं अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारी खुदगर्जी पूरी नहीं कर सकता। बीवी के मुंह से आवाज न निकल सकी। अलमीर दरवाजा बंद करके निकल चुका था। इधर ईमान टिक्सी रख गई। दरवाजा खुलते ही उसने देखा सामने उसके भाई हसन खड़े थे। वो भागकर उसके पास आया, इसके सर पर हाथ रखा। पाची, क्या हुआ? क्यों आई हो तुम इस हालत में? ईमान ने आखिरकार अपने आंसू बहने दिए। और मैं थक गई हूँ। ईमान के घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। हसन ने उसका बैग अपने हाथ में लिया और आहिस्ता से उसके कुंधों पर हाथ रखा। अम्मी किचन से दौड़ी दौड़ी आए। ईमान की हालत देखकर उनके हाथ कांप गए। या अल्लाह, ए ईमान, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अम्मी ने उसे गले से लगा लिया, मगर ईमान के जब्त के बंधन अब टूट चुके थे। वो अम्मी के सीने से लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। हसन ने बहन के झुके हुए सिर पर हाथ रखा और आहिस्ता से पूछा, पाची, बताओ ना, तुम्हारे साथ हुआ क्या? शाहवीर ने कुछ कहा। कुछ किया? ईमान ने आंखें बंद करके सर हिलाया। सर, उसने मुझे तोड़ दिया है। उसने दूसरी शादी कर ली है। ये जमला पूरे घर पर बम की तरह गिरा। अम्मी ने मना पर हाथ रख लिया। हुसैन के चेहरे पर गुस्सा अचानक खून बनकर उबलने लगा। मैं आज ही जाकर उसका सिर फाड़ कर आऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ईमान ने हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं हसन, अभी कुछ मत करना। मैं बस कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं अपने आप को दोबारा समझना चाहती हूँ, बस यही। अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तो जितना चाहे यहाँ रह। उस घर में तेरा सुख भी है और तेरा चैन भी। कोई तुझे जबरदस्ती नहीं भेजेगा। दूसरी तरफ शाहवीर इस वक्त बेबसी के गहरे समंदर में डूबा बैठा था। कमरे में मकमल सुनाटा था, लाइटें बंद, सरफ खड़की से आने वाला कमजोर सा नूर। वो बार बार ईमान का नंबर मिला रहा था, मगर मोबाइल बंद था। कितने ही मैसेजेस लिखे, ईमान प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं गलत था, मुझे सजा दो मगर मत छोड़ो। मगर हर मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा था। दूसरी बीवी इधर उधर टहलते हुए कहने लगी, आप क्यों इतना रो रहे हैं? वो गई है तो जाने दें, मैं तो आपके साथ हूं ना। शाहवीर ने ऊपर देखा, आंखों में सुर्खी और नफरत। बस एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा अब तुम्हारे मुंह से। वो सहम कर एक तरफ हो गई। शाहवीर ने गहरी सांस ली, सिर दीवार से टिका दिया। मैंने अपने घर को खुद आग लगाई है और अब मैं खुद जल रहा हूँ। इधर लामीर वो तेजी से गलियों में भागता हुआ अपने भाई के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही नगहत सामने खड़ी थी, चेहरा सोजा हुआ, आंखें रो रो कर सुर्ख। अलमीर, हम बर्बाद हो गए, हम तो कली तौर पर लुट गए। अलमीर ने दोनों हाथों से बहन के कुंधे थाम लिए। किसने किया? क्या हुआ? नगहत की आवाज कांप रही थी। जिस आदमी ने जमीन दिखाई थी वो जाली निकला। हमने 50 लाख उसके हाथ में दिए और वो गायब हो गया। हामिद तो टूट गया है। वो अपने आप को कसूरवार ठहरा कर बार बेहोश हो रहा है। अलमीर के अंदर का भाई जाग उठा। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। कमरे में दाखिल हुआ तो हमीद जमीन पर बैठा था, दोनों हाथों से सिर थामे मुसलसल यही दहरा रहा था। मैं बर्बाद हो गया, मैं नगहत को तबाह कर बैठा, मैं किसी काम का नहीं रहा। अलमीर ने झुककर भाई को पकड़ा, उसे गले लगा लिया। बस भाई, बस, कुछ नहीं बर्बाद हुआ। हम सब साथ हैं, पैसे गए हैं, हम दोबारा बना लेंगे, मगर तुम हिम्मत हार दोगे तो घर टूट जाएगा। हमीद का जिस्म कांप रहा था। इस लम्हे अलमीर को समझ आया कि घर चलाना पैसों से नहीं, जज्बों और हौसलों से होता है। इस सारे वक्त में ईमान घर के कोने में बैठी खिड़की से अंधेरी रात को देख रही थी और दिल में यही सवाल उठ रहा था, क्या मैं वापस जाऊंगी? क्या मुझे जाना चाहिए? ईमान रात के गहरे सुनाटे में अपने कमरे के कोने में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के बाहर हर कतरा जैसे इसके अंदर की टूट फूट का अक्स दुखा रहा था। उसका बैग एक तरफ पड़ा था, चादर ढीली सी कुंधों पर डाले, बाल बिखरे हुए और चेहरा फीका। जिंदगी जैसे अचानक थक गई हो।
अम्मी कमरे में आए, आहिस्ता से उसके करीब बैठकर कहा, बेटी, उस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है, मगर तू हमें सब कुछ बता दे, अपने दिल की सारी बातें। अंदर ही अंदर जलती रहेगी तो तेरी जान निकल जाएगी। ईमान ने आहिस्ता से अपना सिर अम्मी की गोद में रख दिया। अम्मी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझे छोड़कर दूसरी बीवी ले आया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि ये उसका हक है, उसकी मर्जी है। अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, दूसरी शादी करना हक नहीं, दिल को तोड़ना जुल्म है। मर्द अगर इंसाफ करना ही ना जाने तो वो 2 घर क्या 1 घर भी संभाल नहीं सकता। ईमान के अंदर जैसे बरसों का जहर बाहर निकलने लगा। अम्मी, वो मुझे कहता था कि मैं कमाती कम हूँ, मैं उसके काबिल नहीं, उसकी दूसरी बीवी उसे बेटा देगी, मैं सिर्फ घर में कैद रहने के लिए रह गई हूँ। अम्मी की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर उन्होंने जब्त किया। अल्लाह देख रहा है बेटी, जुल्म कभी नहीं चलता, कभी भी नहीं। रिडिक की दूसरी तरफ शाहवीर का घर। शाहवीर पूरे घर में बेमकसद घूम रहा था। कमरे, लैन, गली, हर जगह उसे ईमान की मौजूदगी याद आ रही थी। कहीं उसकी हंसी, कहीं उसका खाना पकाते हुए गाना गनगनाना, कहीं उसका चुपचाप बैठ जाना। वो कदम घसीटता हुआ ईमान के कमरे में गया, अलमारी खोली, उसकी चूड़ियों का डब्बा खाली पड़ा था। दरवाजे के पास रखा उसका पसंदीदा शाल नहीं था, ड्रेसिंग टेबल पर उसका पुराना परफ्यूम नहीं था। शाहवीर वहीं बैठ गया, उसके दिल पर चाकू फिरने लगा। वह वाकई चली गई है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी बीवी कमरे में आकर बोली, आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जब मैं आई थी तो आपने ही कहा था कि मुझे पहली बीवी की जरूरत नहीं, अब कौन सा इश्क सवार हो गया है? शाहवीर ने सर उठाकर ऐसी निगाह से देखा जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। खामोश रहो, एक लफ्ज नहीं। ईमान से मैंने गलती की थी, मगर तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे मेरी बीवी से दूर किया और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आता रहा। वो पीछे हट गई। क्या मतलब? आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? शाहवीर सर्द लहजे में बोला, हाँ यही मतलब है। अभी के अभी अपना सामान बांधो, वरना मैं खुद उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वो हौका बाका रह गई। शाहवीर ने एक लम्हा जाया किए बगैर बाहर निकलकर गाड़ी निकाली। वो पूरी रात सड़कों पर घूमता रहा, मगर उसका दिल सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, ऐमन। ऐमन वो हमीद के सर में पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। हमीद की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं लुट गया भाई, मैंने नगहत को तबाह कर दिया, मैं मर जाऊंगा। अलमीर ने उसे जोर से पकड़ा। बकवास बंद करो, मरने से कोई मसला हल नहीं होता। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी जेब का आखिरी पैसा भी तुम्हारे लिए निकाल दूंगा, तुम संभल जाओ। नगहत तुम पर टूटी है, मगर तुम्हारी जान नहीं चाहती, तुम्हारा साथ चाहती है। नगहत दरवाजे में खड़ी रो रही थी। अलमीर का दिल फटने लगा। अरबान तीनों घरों में दर्द, पछतावा, आंसू, हर दीवार गवाह बनी खड़ी थी। इसने जैसे ही गाड़ी रोकी, मोहल्ले के बाहर लोगों का हुजूम देखकर इसके कदम बोझल हो गए। दिल किसी खौफनाक अंदेशे से भर गया। वो दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा तो देखा कि निगहत के घर का माहौल शदीद बेचैनी और घबराहट से भरम हुआ था। नगहत की आंखें रोते रोते सरख थीं और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे बस के आने का इंतजार हो। हामिद सोफे के एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और पछतावे का एक अजीब इम्तिजाज था, जैसे वो अंदर से टूट चुका हो, जैसे अपने हाथों से अपनी ही जिंदगी को आग लगा बैठा हो। केस ने अंदर आते ही आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर हामिद ने सिर उठाने की भी हिम्मत न की। नगहत रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हामिद ऐसे लोगों पर भरोसा न करे, मगर उसने मेरी एक न सुनी। वो शख्स छोटा था, पूरी जमीन जाली थी। 50 लाख, पूरे 50 लाख लेकर भाग गया। कैस ने गहरी सांस ली, जैसे पूरा किस्सा समझने के लिए खुद को धीरज देना चाहता हो। हामिद भाई, आप फिक्र न करें, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, बस आप खुद को संभालें। पैसा तो दोबारा भी आ सकता है, मगर आप। ये सुनकर हामिद ने सर उठाया, आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। मैं आप लोगों की नजरों में गिर गया हूँ। मैं शायद कुछ गलत कर बैठूं। नगहत ने फौरन चीख कर कहा, हामिद, खुदा के लिए ऐसी बात मत करना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कोई भी मुसीबत हो हम मिलकर लड़ेंगे। मगर हामिद की आंखों में
उम्मीद की बजाय एक खाली सा खला था। उसके लहजे से टूटने की बो साफ महसूस हो रही थी। कैस ने करीब होकर मजबूत आवाज में कहा, देखें हामिद भाई, सबसे पहले हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, फिर हम इस शख्स के नंबर, इसकी लोकेशन, सब कुछ चेक करवाएंगे। मैं अपने एक दोस्त से भी बात करूंगा जो साइबर क्राइम में है, हम उसको पकड़ लेंगे। आप बस कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। लम्हा भर को हामिद की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी सी झलकी, जैसे किसी ने अंदर के अंधेरे में एक छोटी सी शमा जला दी हो। नगहत ने कांपती आवाज में पूछा, कैस, क्या वाकई कुछ हो सकता है? क्या हम वो पैसे वापस ले सकते हैं? कैस ने हिम्मत देने वाले अंदाज में सर हिलाया। इंशाअल्लाह, मैं वादा करता हूँ ये मामला मैं खुद संभालूंगा। पूरे कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी के नीचे एक खौफ, एक बेचैनी और एक नई जंग की शुरुआत वाज़ह महसूस हो रही थी। और कैस समझ गया था कि अब सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि हामिद की जिंदगी बचाने की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। कमरे में दबे कदमों वाली खामोशी के बावजूद फजा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हामिद के चेहरे पर जैसे अपने किए का बोझ हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें बार बार किसी एक नुक्ते पर टुक जाते, फिर बेअख्तियार भीग जाते। कैस ने उसके सामने बैठकर नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, हामिद भाई, इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी हालत को काबू में रखें। हम सब मिलकर उस मसले से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप टूट गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हामिद ने जख्मी लहजे में पूछा, कैस, तुम्हें लगता है कि मैं वाकई बच सकता हूँ? मैंने अपनी बीवी का ज़िवर बेचकर पैसे पूरे किए थे, वो भी चला गया। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूं? ये सुनते ही नगहत की आंखों से आंसू फिर बहे निकले, मगर उसने मजबूत रहने की कोशिश करते हुए कहा। कमरे में दबे कदमों वाली खामोशी के बावजूद फजा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हामिद के चेहरे पर जैसे अपने किए का बोझ हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें बार बार किसी एक नुक्ते पर टुक जाते, फिर बेअख्तियार भीग जाते। कैस ने उसके सामने बैठकर नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, हामिद भाई, इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी हालत को काबू में रखें। हम सब मिलकर उस मसले से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप टूट गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हामिद ने जख्मी लहजे में पूछा, कैस, तुम्हें लगता है कि मैं वाकई बच सकता हूँ? मैंने अपनी बीवी का ज़िवर बेचकर पैसे पूरे किए थे, वो भी चला गया। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूं? ये सुनते ही नगहत की आंखों से आंसू फिर बहे निकले, मगर उसने मजबूत रहने की कोशिश करते हुए कहा, हामिद, देखा तुमने, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हें भी खुद को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ हैं। कैस ने खामोशी से अपने मोबाइल से वो नंबर निकाला जिससे हामिद से राब्ता किया गया था। उसने फौरी तौर पर एक कॉल की, मगर दूसरी ही बेल पर नंबर बंद हो गया। कैस ने हल्की सी नजर ऊपर उठाई। एक तजुर्बाकार बंदे की नजर जो जान चुका हो कि मामला पेशावर फ्रॉड का है। वे आहिस्तगी से बोला, ये लोग आम नहीं होते, इनके पीछे पूरे गिरोह काम करते हैं, मगर एक गलती अक्सर कर ही देते हैं और मैं उसी गलती को पकड़ूंगा। हामिद ने हैरत और कमजोर उम्मीद के दरमियान पूछा, कैसी गलती? कैस ने संजीदगी से जवाब दिया, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लोकेशन, कोई कॉल रिकॉर्ड, कुछ न कुछ छोड़ ही देते हैं। मैं उसके फोन के डेटा और बैंक अकाउंट की तफसील निकलवाऊंगा। जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसे ट्रेस करना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। नगहत ने थोड़ा सुकून का सांस लिया, मगर दिल की धड़कन अब भी तेज थी। कैस, खुदा के लिए हामिद का हाथ पकड़ कर रखो, वो कल रात से सोया भी नहीं, खाया भी नहीं। उसे खौफ है कि लोग उसे बेवकूफ समझेंगे। कैस ने फौरन हामिद का हाथ पकड़ा। भाई, हम सब किसी न किसी मकाम पर धोखे खाते हैं। गलती आपने नहीं की, गलती उसने की है जिसने धोखा दिया, और हम इस गलती की कीमत उसे जरूर चुकाएंगे। हामिद ने पहली बार केस का हाथ मजबूती से थामा, जैसे अंदर की टूटी हुई एंटों में किसी ने कमक डाल दी हो। इसके होंठ कांपते हुए बोले, अगर वो पकड़ा न गया तो? कैस ने नजरें इसकी आंखों में गाड़ कर कहा, पकड़ेगा, चाहे मुझे रातों को जाग कर उसका पीछा करना पड़े, मैं उसको ढूंढूंगा। ये कहते ही केस उठकर खड़ा हुआ। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, कुछ लोगों से बात करनी है। आप दोनों घबराना नहीं, मैं वापस आकर हर कदम की तफसील बताऊंगा। नगहत ने बेअख्तियार कहा, कैस, खुदा तुम्हें आसानियां दे। तुमने हमारा सहारा बनकर वाकई भाई होने का हक अदा किया है। कैस ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी,
मगर चेहरे पर फिक्र की सख्त लकीरें साफ जाहिर थीं। उसके जाने के साथ ही कमरे में फिर खामोशी फैल गई, मगर इस बार ये खामोशी मुकम्मल नाउमीदी की नहीं थी, बल्कि उम्मीद और खौफ की मिली जली धड़कन जैसी थी। बाहर निकलते ही केस ने गहरा सांस लिया, मोबाइल जेब में रखा और दिल ही दिल में खुद से एक अहद किया, मैं इस शख्स को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे जमीन फट जाए या आसमान टूट पड़े। केस जैसे ही घर से बाहर निकला, तेज ठंडी हुआ उसके चेहरे से टकराई, मगर उसके कदमों की रफ्तार में कोई कमी न आई। उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक मखसूस नंबर मुलाया। हाँ जरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक बंदे ने फ्रॉड किया है हामिद भाई के साथ, मुझे उसका डेटा, उसका अकाउंट, उसकी लोकेशन जो भी मिल सके चाहिए। फोन के दूसरी जानिब जरी ने संजीदगी से जवाब दिया, किस तुम जब भी फोन करते हो मामला बड़ा होता है, मुझे सब कुछ भेजो, मैं अभी काम शुरू करती हूँ। केस ने जल्दी से तमाम तफसीलात भेज दें और फिर मोटरसाइकिल पर बैठ कर शहर के दूसरे हिस्से की तरफ रवाना हुआ, जहां उसका एक और दोस्त हैदर रहता था, जो ब्लैक लिस्टेड सिम कार्ड्स की ट्रेसिंग में महारत रखता था। दूसरी तरफ घर के अंदर हामिद खामोश बैठा था, उसके हाथ आपस में जुड़े हुए मगर कांप रहे थे। नगहत चौराहे पर खड़ी थी, मगर बार बार पीछे मुड़कर उसे देखती, जैसे डर हो कि कहीं वो फिर टूट न जाए। हामिद, तुम मेरी तरफ देखो, उसने नम लहजे में कहा। केस अपनी जान लगा देगा, वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, तुम बस हिम्मत रखो। हामिद ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया, आंखों में खालीपन था। नगहत, मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया, ज़ीवर का बोझ भी और ये कर्ज भी। नगहत उसके करीब बैठ गई, उसका हाथ थाम कर बोली, मुझे ज़ीवर की फिक्र नहीं, मेरी फिक्र तुम हो। अगर तुम कुछ हो गया ना, तो मैं किसके सहारे रहूंगी। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नगहत चौंक कर उठी, दरवाजे खोला तो सामने उनका बड़ा भाई खड़ा था, सख्त चेहरा, तेज आंखें, और उसके आने से घर के अंदर जैसे हुआ रख गई। क्या मसला चल रहा है तुम दोनों के घर में? वो बगैर सलाम के अंदर आ गया। हामिद के चेहरे का रंग उड़ गया, नगहत के हाथ लर्ज गए। ये वो शख्स था जिसे वो अभी कुछ नहीं बताना चाहते थे। उसने कुर्सी खींची और जबरदस्ती बैठते हुए कहा, बाजार में बातें चल रही हैं, कोई फ्रॉड, कोई पैसे, कोई लड़ाई, सब क्या है? सीधी बात करो। हामिद के होंठ खश्क हो गए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। नगहत ने कंट्रोल संभाला, भाई अभी केस जाकर सारा मसला संभाल रहा है, प्लीज आप उसे मुश्किल न बनाएं। बड़े भाई ने उसकी बात काट दी। केस तुम लोग अब अपने घर के फैसले भी उस लड़के से करवाओगे? ये जमला चाकू की तरह लगा। हामिद ने नजरें झुका ली। अचानक हामिद के मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई। मैसेज किसका था? एक लूप मिला है, नंबर एक जगह फाल हुआ था, मैं इस जगह जा रहा हूँ, तुम लोग घर से बाहर न निकलना। हामिद ने मैसेज पढ़ते ही खौफज़दा नजरों से नगहत की तरफ देखा। बड़े भाई ने फोन छीन कर मैसेज देख लिया, फिर तंजिया हंसी हंसा, तो अब वो बदनाम इलाके में घुसने जा रहा है। तुम लोग पागल हो, ये मामला सीधा पुलिस का है। नगहत ने सख्त लहजे में जवाब दिया। पुलिस को दिया होता तो वो पैसे हमेशा के लिए डूब जाते। केस को पता है वो क्या कर रहा है। बड़े भाई ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। वो लड़का अगर आज रात किसी मुसीबत में फंस गया तो जिम्मेदार तुम लोग होगे। अंदर खौफ और बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था, और दूसरी तरफ केस तेजी से उस मकाम की तरफ बढ़ रहा था जहां सच और खतरा दोनों उसकी राह देख रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क पर झाड़ झंकार की तरह खामोशी फैली हुई थी। हल्की हल्की बिखरी हुई स्ट्रीट लाइट्स के नीचे केस की मोटर साइकिल का तेज शोर फदा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो इस मकाम के करीब पहुंचा जहां नंबर आखिरी बार फाल हुआ था, माहौल मजीद अजनबी और खौफनाक होता जा रहा था। वो जगह शहर का एक ऐसा कोना थी जहां कानून से ज्यादा बदनाम लोगों का असर चलता था। टूटी हुई दीवारें, नीम रोशन गलियां और दूर कहीं से आती कुत्ते के भौंकने की आवाज, हर चीज अपनी जगह खतरे का ऐलान थी। किसने मोटरसाइकिल एक वासिदा दुकान के साइब में खड़ी की और मोबाइल निकाला। लोकेशन के मुताबिक वो नंबर इसी इलाके में तकरीबन 14 मिनट तक आन रहा था। उसने उड़द गर्द नजर दौड़ाई। कुछ लड़के एक कोने में बैठे सिगरेट पी रहे थे। 2-3 मुशकूक लोग गली के अंदर बाहर हो रहे थे। कैस ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में बोला, अगर ये वही लोग हैं तो यहाँ अकेले आना बहुत बड़ा रिस्क है, मगर कुछ करना भी तो है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस गली की तरफ बढ़ा।
जहां लोकेशन पंग हुई थी। दूसरी तरफ घर का माहौल मजीद गंभीर हो चुका था। बड़ा भाई चढ़चढ़े लहजे में बार बार हामिद और नगहत को बुरा भला कह रहा था। तुम दोनों ने अक्ल बिल्कुल खो दी है। कौन सा शरीफ आदमी अकेला इस तरह के इलाके में जाता है? अगर कैस के साथ कुछ हो गया तो? हामिद ने थके हुए लहजे में कहा। भाई, वो सिर्फ मेरा नहीं, हमारा भी खैर ख्वाह है। वो जानता है वो क्या कर रहा है। बड़े भाई ने तंजिया कहकहा लगाया। ऐसी बातें ड्रामों में अच्छी लगती हैं। सच्चाई ये है कि तुम दोनों ने अपनी बेवकूफ़ी में उसे भी फंसाया है। नगहत ने बर्दाश्त न कर सकी। भाई, जब सबने मन फेर लिया था उसी केस ने हमारा हाथ थामा था। अगर आज वो मेहनत कर रहा है तो इसका तुम मजाक ना उड़ाओ। बड़ा भाई एक लम्हे को रखा, फिर आहिस्ता से बैठ गया। शायद नगहत की बात उसके दिल पर लगी थी। हामिद के फोन पर दोबारा वाइब्रेशन हुई। जरी का मैसेज था। केस ने जो लोकेशन भेजी थी वहां एक गुरुआ सरगर्म होता है। इनका काम जमीनों के जाली कागज बनाकर लौटना है। बहुत खतरनाक लोग हैं। केस वहां अकेला ना जाए, फौरी उसे कॉल करो। ये पढ़ते ही हामिद का रंग उड़ गया। नगहत ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछा, क्या हुआ? हामिद ने लरजती आवाज में कहा, केस खतरे में है। बड़े भाई फौरन उठा। फोन करो उसे। हामिद ने नंबर मिलाया। टर ट्रार फोन बजता रहा, मगर केस ने नहीं उठाया। नगहत के हाथ से मोबाइल तकरीबन करने लगा। या अल्लाह, केस को अपनी हिफाजत में रखना। बड़ा भाई फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा। चलो, मैं वहां जा रहा हूं, तुम लोग घर में रहो। हामिद ने फौरन कहा, मैं भी चलूंगा। नगहत की आंखें खौफ से फैल गईं। नहीं हामिद, तुम एक और मुश्किल में न पड़ जाना। बड़े भाई ने खड़े ही खड़े फैसला सुनाया। न वक्त बहुत कम है। अगर हमने अभी न निकला तो देर हो जाएगी। वो दोनों तेजी से घर से निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज ने नगहत को अंदर तक हिला दिया। इधर केस इस गली में दाखिल हो चुका था और उसे अंदाजा नहीं था कि चारों तरफ चार आंखों ने उसे देख लिया है। वो खामोशी से एक पुरानी इमारत के दरवाजे के पास रखा, कैमरे की लाइट आन की और निशान तलाश करने लगा। पीछे से किसी की सरगोशी अभरी। वो यहाँ गया, यही है वो। केस लम्हा भर को चूका, मगर मरने से पहले ही दो साए उसके पीछे आकर रख गए। गली की अंधेरा अब ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। केस ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा तो साए उसके करीब खड़े थे, लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आए थे। हवा में खुशबू और गंदा धुआं मिक्स हो रहा था, जैसे ये जगह सदियों से किसी साजिश की गवाह बनी हो। केस ने आहिस्ता कदम बढ़ाए और दिल ही दिल में सोचा, ये लोग आम नहीं हैं, हर हरकत का हिसाब रखेंगे, मगर मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। साए भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आए। एक ने गहरी आवाज में कहा, तुम वही हो जो हामिद के साथ धोखा खाकर आया है? केस ने फौरन अपना फोन जेब से निकाला, एक हाथ से उसे पकड़ा और दूसरी हाथ से अपनी पतलून की जेब में छिपाया। हाँ, मैं केस हूँ और तुम लोग इस फराड के जिम्मेदार हो, है ना? उसके लहजे में न खौफ था न घबराहट, बस सख्ती और एक इज्म। साए में से एक कदम आगे बढ़ा, चेहरा धंधला सा लेकिन सख्ती में डूबा हुआ। तुमने हामिद को छुड़ाकर क्यों भेजा? ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं। अगर तुम